So good evening to all the viewers. We at Osteoarthritis and welcome everyone for this beautiful organized and awareness session on this one of the best topic. So around 15 to 20% Indians, or over more than 180 million people, suffer from some form of arthritis. Yes, you absolutely right. Heart. We are talking about osteoarthritis. So about 9.36% of Indians aged 45 plus have arthritis, and with prevalence increasing with age and higher females, that is 11%, than males 7.49%. And most of common affecting millions with knee osteoarthritis being particularly prevalent and especially in women. So we will talk about in a different way that robotic joint replacement. Yes, today we'll talk about some points. It's first time we're talking about that robotic joint replacement that is rapidly transforming the landscape of orthopedic care in India. Yet many people are still unaware of the immense benefits of these advancements that can offer. So against this backdrop of innovation, we are honored to welcome Dr. Lakshay Goyal, a highly respected consultant in robotic joint replacement and orthopedics with more than 2 decades of clinical experience. And so Dr. Goyal has established himself as a trusted name in orthopedic surgery. And obviously, doctor area of specializations that includes orthopedics and joint replacement, that is especially in hip and knee, orthoscopy, sports and injury management, and obviously robotic surgery of enhanced precision and outcome. So today, Dr. Goyal will sharing his insights on a topic that affects millions, that management of osteoarthritis and knee pain. So without any further delay, let's begin this enlightening session with Dr. Lakshay Goyal. So doctor, it's you that please create some awareness on this. Thank you so much, Sudipto, for the wonderful introduction. And thank you, Zydus, for giving me this opportunity to share my expertise and knowledge on knee pain. इस presentation को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बोलूंगा. So anyone during viewing, if they have any questions, please feel free to ask. Basically, I want this to be interactive session ताकि maximum questions आपके doubts knee pain को लेके हम solve कर सकें. इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहूंगा कि नी पेन के कारण क्या होते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे बोला जाता है, यानी कि घुटना घिसने की बीमारी, घुटने में गैप की बीमारी जिसे बोला जाता है, वो क्या होता है. तो आई होप आई गिव यू सम इंफॉर्मेशन विच हेल्प्स यू एंड आपको इस प्रेजेंटेशन से, इस वार्तालाप से जो हम लोग कर रहे हैं, आपको फायदा हो और आपकी हेल्थ इस कॉन्वर्जेशन से बेटर हो. सो लेट्स मूव. सो बेसिकली हम इस प्रेजेंटेशन में नी पेन के बारे में बात करेंगे. नी पेन एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है. इफ़ यू सी, घुटने में दर्द मोर और लेस आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स को, किसी ना किसी को कभी किसी पॉइंट पे कभी ना कभी होता है. अलग अलग एज ग्रुप में होता है. इट कैन बी अ यंग पर्सन, इट कैन बी एन ओल्ड पर्सन, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एन इंजरी, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एक लिगामेंट कोई घुटने में टूट जाए, कार्टिलेज डैमेज हो जाए, मसल में डैमेज हो जाए, या जोड़ में इन्फ्लेमेशन हो जाए. यानी कि घुटने के दर्द के कारण बहुत सारे होते हैं. अगर आप घुटने को देखें तो हमारे घुटने में हड्डी होती है, लिगामेंट होता है, कार्टिलेज होती है, और साथ के साथ एक अंदर टिश्यू, एक फ्लूइड होता है जो हमारे घुटने को बनाता है. इनमें से किसी भी चीज में, हड्डी में, कार्टिलेज में, वॉशर में, मसल में, लिगामेंट में, कार्टिलेज में, किसी में भी डैमेज होने की वजह से अगर हमारे को पेन हो रहा है तो उस कारण को हम आज एडवांस्ड इमेजिंग और एडवांस्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन की हेल्प से पता कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं. देन अगर आप बात करें कि अगर किसी को घुटने में दर्द हो रहा है तो उसके क्या क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, यानी कि घुटने के दर्द के साथ साथ क्या क्या हो सकता है. एक तो उसके घुटने में स्वेलिंग आ सकती है, वो घुटना जाम हो सकता है, यानी कि स्टिफ हो सकता है, उसमें रेडनेस आ सकती है. यू नो, समटाइम्स देयर इज सो मच स्वेलिंग दैट इट इज गरम, इट इज वार्म टू टच. देन पैरों में कमजोरी आ जाती है, अनस्टेबल लगता है पैरों को चलते हुए, या फिर पैरों में कड़कड़ आवाज आती है, या फिर उसमें एक क्रंचिंग नॉइस आती है. और कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा घुटना लॉक हो गया है, कि मेरा घुटना सीधा ही नहीं हो पा रहा है. तो ये सब घुटने के जो सिम्टम्स होते हैं ये नी पेन के साथ साथ हो सकते हैं, और हर अलग अलग टाइप की बीमारी में ये सिम्टम्स अलग अलग तरीके से आते हैं. सुधी, तो प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज अ क्वेश्चन, इफ आई नीड टू स्टॉप, बीच में रुकना है या किसी का क्वेश्चन है तो मैं उसी टाइम पे आंसर करना प्रेफर करूंगा. तो यू प्लीज लेट मी नो. ओके? Yes, definitely. Okay.
नाउ अगर हम बात करें कि घुटने में दर्द के कारण क्या होते हैं, घुटने में दर्द के कारण जैसा कि मैंने ऐसे बताया कि यंग एज में जनरली अगर घुटने में चोट लग जाए, कोई फुटबॉलर है, कोई डांसर है, कोई एथलीट है जो पिवटिंग स्पोर्ट्स खेलता है, तो उसकी वजह से अगर उसके घुटने में इंजरी हो जाए तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस नी पेन का। फिर कुछ कारण होते हैं जिनको आर्थराइटिस बोला जाता है। आर्थराइटिस अगर वर्ड देखा जाए, इसका मतलब होता है आर्थ मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपके जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होना। आर्थराइटिस के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो आपने गठिया की बीमारी कॉमनली सुना होगा, एक गाउट आर्थराइटिस होता है, और एक ऑस्टियो आर्थराइटिस। हम यहाँ पर बाकी आर्थराइटिस पे फोकस नहीं करेंगे, हम मेनली फोकस करेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस का मतलब होता है बोन का आर्थराइटिस। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस होता है। और अगर इस वर्ड को ब्रेक डाउन करा जाए, ऑस्टियो यानी कि बोन, आर्थराइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन। अगर हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि ये नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में इफ यू सी, ये एक नॉर्मल नी है। नॉर्मल नी में अगर आप देखें तो ये जो ब्लू कलर का टिश्यू दिख रहा है ये हमारी कार्टिलेज होती है, यानी कि ये, और ये जो ब्लू कलर का टिश्यू है ये वॉशर होता है। हमारे घुटने में नॉर्मली भगवान ने हमें घुटने को लुब्रिकेट करने के लिए, यानी कि घुटने में ग्रीस दी होती है, एक तरीके की एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड दी होता है, साथ में भगवान ने एक्स्ट्रा वॉशर दिए होते हैं और कुछ कार्टिलेज दी होती है, जो हमारे घुटने में एक तरीके से बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कुशन की तरह, और घुटने को घिसने से बचाते हैं। लेकिन कुछ कारण की वजह से उम्र के साथ, अगर आप ये फोटो राइट में देखें जहां मेरा लेजर पॉइंटर है, आप ये देखिए कार्टिलेज कैसे पूरी वॉर्न आउट हो गई है, यानी कि ये वॉशर भी घिस गया है, ये कार्टिलेज भी घिस गई है, और ये हड्डी चारों तरफ से एक्स्ट्रा बननी शुरू हो गई है। इसलिए इस आर्थराइटिस को वियर एंड टियर आर्थराइटिस कहा जाता है, यानी कि जैसे गाड़ी के टायर घिस जाते हैं वैसे ही आपके घुटने भी उम्र के साथ घिस जाते हैं। ये एक तरीके का वियर एंड टियर होता है। जैसा आपने देखा कोई गाड़ी जो 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है और एक गाड़ी जो 4 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो 4 लाख किलोमीटर वाली जो गाड़ी है उसके घुटने ज्यादा, उसके टायर ज्यादा घिस गए होंगे। सिमिलरली ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ भी होता है। खाली चलना ही कारण नहीं होता, बहुत सारे और कारण होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, बट लेकिन समझाने के लिए ये घुटने का घिसना होता है। और ये घुटने का घिसना एक मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस का मोस्ट कॉमन कारण होता है। नाउ किसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है? क्या सबको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है? आपने देखा होगा आपकी फैमिली में कुछ लोग हैं जो 80 साल के हैं और एकदम दौड़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो 50 साल के हैं जिनको घुटने में दर्द होना शुरू हो गया है। हमने एक 80 साल वाले का एक्सरे कराया, उसको बिल्कुल भी ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। हमने किसी 50 साल वाले का एक्सरे कराया तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। तो ये कैसे पता लगता है कि किसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, किसको नहीं होता? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा जेनेटिक्स, यानी कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि किसी की फैमिली में उसको पहले आर्थराइटिस हुआ है, तो देर आर हाई चांसेस कि उसकी फैमिली में दोबारा से ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वेट, सिंपल सी बात है कि अगर किसी का वेट ज्यादा है तो उसके घुटने पे लोड ज्यादा आएगा, उससे कार्टिलेज डैमेज ज्यादा होगा, कार्टिलेज डैमेज होगा तो उससे वॉशर डैमेज होगा, वॉशर डैमेज होगा तो उससे ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। वेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जब हम लोग कोई भी नी पेन का ट्रीटमेंट कंसिडर कर रहे होते हैं। अगर आपके वेट ज्यादा है तो उसकी वजह से आपका कार्टिलेज डैमेज ज्यादा होगा और उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा होगा। Then the second most important cause is lack of muscle strength। अगर मान लो हमारी मसल्स ही वीक है, सिंपल सी बात है, टायर चलाने के लिए, मैं हर चीज में गाड़ी का एग्जांपल देता हूँ, हमें एक रबड़ की वो चाहिए होती है जो टायर को चलाती है। अगर वो रबड़ की हमारी टायर चलाने वाली शीट ही खराब हो जाए तो टायर ढंग से चलेगा नहीं। सिमिलरली घुटने को चलाने के लिए मसल चाहिए होती है। So if you don't have a muscle strength, the lack of the muscle strength will cause lack of support to the joints, and lack of support to the joint will cause more pain in those knee joints. Then the last is an occupation and previous injury। For example, कुछ occupations ऐसी होती हैं जिसमें घुटने की चाल, ऊपर नीचे बैठना, स्क्वाट करना, चौकड़ी मार के बैठना बहुत ज्यादा होता है। और किसी को अगर पहले से चोट लगी हुई है, उसका लिगामेंट टूटा हुआ है, उसके वॉशर टूटे हुए हैं ड्यू टू सम इंजरी, they are at risk, they are at more at risk for osteoarthritis। so इन इन सब कारणों के कॉम्बिनेशन से osteoarthritis होता है।
नाउ ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज कैसे होता है कि मेरे को घुटना घिस गया है, क्या देख के बता सकते हैं? यस, कुछ चीजें होती है जो एक डॉक्टर आपका हिस्ट्री से कि कैसे टाइप का पेन है, किस टाइम पे पेन हो रहा है, किस टाइम के बाद वो पेन ठीक हो रहा है, कितना चलने पर पेन हो रहा है, और कैसे पेन का ऑनसेट होता है, ये सब हिस्ट्री लेके डॉक्टर डायग्नोज कर सकता है। अनदर इज फिजिकल एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपके घुटने को एग्जामिन करता है, कुछ चीजें होती हैं घुटने में, सूजन हो गई, घुटने की मूवमेंट कम होना, घुटने में एक्स्ट्रा हड्डी फील होना, घुटने में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे दर्द होना, ये सब देख के एक डॉक्टर ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोज कर सकता है। देन उसके बाद वो एक एक्सरे कराता है। एक्सरे में अगर बोन है और कार्टिलेज डैमेज है और कुछ एक्स्ट्रा हड्डी बन रही है तो एक्सरे में भी वो ऑस्टियोआर्थराइटिस दिख जाता है ना। अगर एक्सरे में नहीं पता लगता, कुछ स्पेशल टाइप के एक्सरेज होते हैं जो एक डॉक्टर कराता है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने के लिए, और वो एक्सरे के साथ साथ पेशेंट को पता लग जाता है कि उसका घुटना डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। एमआरआई कराने की कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस कुछ केसेस में जरूरत पड़ सकती है, उसमें ये पता लग जाता है कि एमआरआई में अगर एक्सरे में नहीं दिख रहा है तो एमआरआई में हम कार्टिलेज को बहुत बेहतर तरीके से देख पाते हैं, और इन रेयर इंस्टेंसेस जब एक्सरे में पता नहीं लग रहा है तो हमें एमआरआई भी कराना पड़ता है। नाउ ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक कैसे करें? तो पहली चीज होती है गोल, कि हमें करना क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमें क्या करना है जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो जाए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसा वेट की वजह से हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, सिमिलरली वेट लॉस इज वन ऑफ द मेन थिंग्स विच कैन हेल्प विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। नाउ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की अगर बात करें तो एक्सरसाइज में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी होती है। एंड मैं आज एक वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी एक्सरसाइज दिखाऊंगा जो आप अपने घुटने के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस में कर सकते हैं। So, Sudipto, I think I will take the viewers to the video if that is okay. Am I Yes, audible and clear to everyone? audible. All right. One question came on that day, on what age arthritis start? So that's a very good question. So osteoarthritis generally old age की disease है, यानी कि it starts at the age of 50 but it can start early also. There is no specific age as to कब arthritis शुरू होता है, but generally मैंने देखा है कि patients का age group जो घुटना घिसने वाली age होती है वो 55 60 55 60 के करीब होती है। बट अगेन इट डिपेंड्स, अगर आपको ऑटो इम्यून कोई कंडीशन है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो इवन 35 40 पे भी आपके घुटने घिसने शुरू हो जाते हैं अगर रूमेटॉइड कंट्रोल नहीं है तो। ओके, Okay. राइट। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो देखेंगे तो ये दीज आर 10 एक्सरसाइजेस विच आर वेरी वेरी गुड फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो फर्स्ट इज अ सिंपल काफ स्ट्रेच। देखिए ये टॉवल को लेके किस तरीके से अपनी नी को स्ट्रेच करिए जिससे आपकी काफ मसल स्ट्रेच होती है। हर एक्सरसाइज का, हर स्ट्रेच का तभी फायदा है अगर उसे 15 सेकेंड्स के लिए होल्ड करा जाए। देन द सेकेंड एक्सरसाइज दैट वी डू इज अ टावल असिस्टेड नी मोबिलिटी, यानी कि ऐसे टावल से घुटने को मोड़ना, सीधा करना। ऐसे करने से आपकी घुटने में चाल बनी रहती है, घुटना स्टिफ नहीं होता, चाल बनी रहती है तो आपकी मसल्स ठीक रहती हैं। तो एक टॉवल को लेके जितना जितना पेनलेसली आप ये कर सकते हैं आप ये मूवमेंट कर सकते हैं। एंड ये मूवमेंट करने की हेल्प से आपको घुटने में चाल बनी रहेगी, आपकी मसल्स काम करती रहेंगी, आपकी घुटने में रेंज ऑफ मोशन रहेगी। डू रिमेंबर दैट किसी भी एक्सरसाइज में अगर पेन होता है तो उसको ना करें। Then we talk about the main muscle of your knee, that is the quadriceps. Now this is the most important exercise. You see quadriceps exercise, आप देख रहे हैं किस तरीके से इसने तकिया घुटने के नीचे रख के उसको नीचे दबाया जा रहा है और आपका पैर ऊपर उठ रहा है। इससे आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल यानी कि जो थाई मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और थाई मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से आपकी नी एक स्टेबल, देखिए ये जैसे दिखा रहे हैं ये क्वाड्रिसेप्स मसल होती है। ये क्वाड्रिसेप्स मसल आपकी थाई के आगे वाले एस्पेक्ट पे यानी कि थाई के एंटीरियर एस्पेक्ट पे होती है, और ये एक्सरसाइज करने की हेल्प से आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग होती है और आपको हेल्प करती है। Then we talk about the bridging exercise. You see, this is the exercise which makes your core strong. Now, core का घुटने से क्या रिलेशन है? core, देखो अल्टीमेटली देर आर फ्यू मसल्स जो घुटने से लेकर ऊपर हिप जॉइंट तक जाती है, जिसके लिए हमें कोर स्ट्रेंथनिंग करनी जरूरी होती है, क्योंकि उससे हमारा बैलेंस बनता है, हमारा गेट इंप्रूव होता है और हमारी चाल इंप्रूव होती है। और अगर आपकी चाल इंप्रूव होएगी तो आपके घुटने में लोड कम आएगा एंड देयरफॉर आपका घुटना कम घिसेगा।
देन देर आर सम एक्सरसाइज जो उल्टे लेट के करनी होती है, जो कि हैमस्ट्रिंग मसल्स यानी कि जो थाई के पीछे मसल्स होती है। एंड अगेन दिस इज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। दीज आर कॉल्ड हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज। इसमें आप देखें पेशेंट को उल्टा लेट के ऐसे घुटना मोड़ना चाहिए। धीरे धीरे आपका डॉक्टर आपको बता देगा कि इस पे वेट बांधना है, वेट बांध के घुटना मोड़ना है कि नहीं मोड़ना, वो एज पर योर क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपके डॉक्टर आपको बता देंगे। सो दिस इज कॉल्ड प्रोन फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। देन हैमस्ट्रिंग के लिए अब और एक्सरसाइज अगर देखें तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज है जिससे हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होती है। पैर को सीधा रख के इस पोजीशन में हम बैक को स्ट्रेट रख के आगे की तरफ बेंड करते हैं, जिससे हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स यानी कि जो नी के पीछे पूरी मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मसल, दीज आर कॉल्ड वीएमओ मसल। अगर आप ये एक्सरसाइज कर पा रहे हैं तो जिससे आप जहां हाथ रखा जा रहा है वहां पर एक मसल होती है जिसको वीएमओ बोला जाता है। वो वीएमओ मसल आपकी नी कैप को सेंट्रल पोजीशन में रखने के लिए होती है, और इस एक्सरसाइज के थ्रू आप वीएमओ को भी स्ट्रेंथन कर सकते हो, विच इज अ वास्टस मीडियालिस ऑब्लिकस मसल। एंड अगेन अनदर एक्सरसाइज फॉर वीएमओ इज दिस बॉल एक्सरसाइज, जिसमें आप पीछे की तरफ एक बॉल रख के आप दीवार पे ऐसे ऐसे कर, जिस तरीके से दबा रही है बॉल को आप दबाते हैं, एंड दिस एक्चुअली क्रिएट्स अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर हैमस्ट्रिंग एज वेल एज वीएमओ which stabilizes your knee. And the last exercise is called safe squats. Safe squats is पूरा complete squat नहीं करना, थोड़ा सा नीचे बैठना है, हाथ सामने करने हैं, then again खड़े होना है। This creates an appropriate force in your knee, and this helps with the strengthening of the muscles around the knee. And believe me, all these exercise, सारी दवाइयों को अगर हटा दें तो ये एक्सरसाइज से ही आप अपने आर्थराइटिस को बढ़ने से रोक सकते हैं। And the last exercise again, sorry that was not, this is the last, is calf stretch. Simple खड़े होके ऐसे एक्सरसाइज करना जिससे आपकी calf muscle stretch होती है। So these are the 10 exercise which are important for your knee pain, and these actually help with dealing and preventing osteoarthritis and delaying arthritis in the knee. Now अगर किसी को osteoarthritis हो जाए तो डॉक्टर के पास क्या क्या ऑप्शन होती है। हमारे पास कुछ पेन किलर मेडिकेशंस होती हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो सूजन कम करती है, कुछ हम घुटने में इंजेक्शन लगाते हैं, स्टीरॉइड के इंजेक्शन, हाइल्यूरोनिक ग्रीस के इंजेक्शन लगाते हैं, एंड द थर्ड ऑप्शन इज द सर्जरी विच इज नी रिप्लेसमेंट। अलग अलग न्यूट्रिस्यूटिकल्स आते हैं, यानी कि जो घुटने में ग्रीस बढ़ाने वाली दवा होती है, जैसे कोलेजन है, हाइल्यूरोनेट है, बॉसवेलिया सेराटा एक्सट्रैक्ट है, करक्यूमिन है। ऑल ऑफ देम एक्चुअली हेल्प टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक ये सब हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करे हैं तो डू टेक देम, दे डू हेल्प इन सम केसेस फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट दे आर नॉट मैजिक बुलेट्स। कुछ टाइम के लिए हेल्प करेंगे, फिर कुछ टाइम के बाद लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे स्टॉप हेल्पिंग जब आर्थराइटिस बढ़ जाता है। देन अल्टीमेटली what happens if arthritis reaches a level जब दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपका दर्द इतना ज्यादा है कि आपकी लाइफ हैम्पर हो रही है, आप अपने डेली के काम नहीं कर पा रहे हो, आप बाथरूम तक नहीं जा पा रहे हो, आपको कांस्टेंट पेन में रात को नींद नहीं आ रही है। इन ऑल दोज केसेस जब आपकी लाइफस्टाइल इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, देन वी एडवाइज द नी सर्जरी विच इज द टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जो कि हम लोग मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग दिल्ली में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करते हैं, जो कि आजकल लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें फुली ऑटोमेटेड रोबोट को यूज करके मोस्ट एडवांस्ड इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं, और एक एक्यूरेट इम्प्लांट पोजीशन यानी कि अप टू 1 मिलीमीटर ऑफ इम्प्लांट पोजीशन के हिसाब से वो इम्प्लांट को पोजीशन करके एग्जैक्ट आपको मसल स्पेयरिंग टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट करी जाती है। नाउ देन दीज आर दी एक्सरसाइज जो मैंने आपको वीडियो दिखाई दिया था। जनरली सर्जरी के बाद आपको फिजियोथेरेपी कराने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप अगले दिन से खुद ही एक्सरसाइज कर पाएंगे। फिजियोथेरेपी आपके पेन और स्वेलिंग कम करेगी, आपकी नी मोबिलिटी को बढ़ाएगी और आपका मसल स्ट्रेंथ और कंट्रोल करेगी। नाउ अल्टीमेटली व्हेन यू शुड सी अ डॉक्टर, यानी कि थोड़ा बहुत नी पेन कभी कभार हो रहा है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, देन ऑल्सो यू शुड सी अ डॉक्टर, बिकॉज अर्ली स्टेज में आर्थराइटिस को कैच करने से हम उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। हम एक फुल ऑन एडवांस्ड आर्थराइटिस का प्रोग्रेशन रोक सकते हैं, पूरा घुटना घिसने से रोक सकते हैं। साथ में हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज और मेडिसिन दे सकते हैं जिससे आपकी सर्जरी की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए। जस्ट हर सर्जन का ये पर्सपेक्टिव नहीं होता कि नी रिप्लेसमेंट ही करना।
एक डॉक्टर का ये भी पर्सपेक्टिव होता है कि कैसे आप सर्जरी से बचें, कैसे आप दवाइयों से दूर जाएं। इसलिए मैंने आपको एक्सरसाइज का वीडियो दिखाया, जिससे आप लोग एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करें एंड मेडिसिन और सर्जरी से दूर जा सकें। सो अगर आपको थोड़ा भी नी पेन हो रहा है तो डू सी योर डॉक्टर, बिकॉज दे कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, किस टाइम पे करना है, कौन सी दवाई लेनी है, क्या क्या अपनी लाइफ में, जिंदगी में बदलाव लाने हैं जिससे आपका आर्थराइटिस रुक सके। अल्टीमेटली द टेक होम मैसेज इज दैट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है घुटना घिसता जाता है, सो यू मेंटेन अ हेल्दी वेट, you be in shape, do exercise, muscles ki exercise specifically, you stay strong and you stay flexible and be smart about exercise. अगर मान लो आपको नी पेन हो रहा है, एक्सरसाइज जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज की दिखाई, अगर किसी वजह से वो एक्सरसाइज करते हुए पेन हो रहा है, देन इन दैट केस we can be very smart, we can do it in a slightly modified way, obviously by after consultation with the doctor. And sometimes if the pain is very bad, then we consider switching to swimming, water aerobics or low impact activities, जिसमें नी का पेन आपको इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज उसमें नी आपकी कांटेक्ट में नहीं आती ग्राउंड के स्विमिंग वगैरह में, एंड देयरफॉर दे आर लेस पेनफुल एक्सरसाइजेस. And ultimately I think it is very important, as I said, to visit your doctor for early diagnosis of osteoarthritis. So that is it. That is my presentation. If you have any questions, I'll be happy to take those questions. Yeah. Thank you, Doc, for this betterment of this video. I think this will appreciate it. There are 3, 4 questions already been come, so I'll put one by one. Someone asked कि इसका कोई early warnings on arthritis, क्योंकि ऐसा कुछ in highlight on that. या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो अर्ली वार्निंग, जैसे आपके जॉइंट में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाएगा, जितना आप पहले चल पाते थे उतना आप नहीं चल पाएंगे, घुटने में जैसे आप चौकड़ी मार के आराम से बैठ पाते थे वैसे नहीं बैठ पाएंगे, आपको घुटने में कड़कड़ की आवाज आएगी जो पेनफुल होगी. ये सब अर्ली साइंस होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के. तो अगर इनमें से कोई भी साइन है तो डू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट. Um, इनका सवाल है, जैसे आपने ऑन रिप्लेसमेंट या कुछ बोले कि कैन आई लिव ए नॉर्मल लाइफ विथ हिप आर्थराइटिस और समथिंग, उनका कुछ है, तो इसके लिए उन्होंने पूछा होगा. सो अगर आप रिप्लेसमेंट कराते हैं तो रिप्लेसमेंट के बाद नॉर्मल लाइफ पे आने में अराउंड 1.5 मंथ लगते हैं. कुछ टाइम तक आपको वॉकर यूज करना होता है, कुछ टाइम तक आपको असिस्टेड स्टिक वगैरह यूज करनी होती है जिसके थ्रू आप वॉक करते हैं. बट अल्टीमेटली रिप्लेसमेंट इज अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी इफ डन इन राइट हैंड्स. सो रिप्लेसमेंट के बाद नॉर्मल जिंदगी में आप वापस आ सकते हैं और जो काम आप करना चाहें आप रिप्लेसमेंट के बाद कर सकते हैं. Just I like to take one note. Can you help me something on topic of some replacement? But there is some myth की replacement होते चलना बंद हो जाता है, या बिल्कुल. मिथ रहता है बहुत पेन होता है समथिंग. बिल्कुल. तो जब रिप्लेसमेंट होती है, रिप्लेसमेंट के टाइम पे चाहे वो हिप रिप्लेसमेंट हो चाहे वो नी रिप्लेसमेंट हो, हम लोग उसको एनेस्थीसिया में करते हैं, जिसमें आपकी कमर में एक पतली सी सुई से एक ट्यूब डाली जाती है छोटी सी, जिससे दर्द की दवा दी जाती है जब तक आप हॉस्पिटल में होते हैं. तो हॉस्पिटल सेटिंग में एक एनेस्थीसिया की टीम आपका पेन मैनेज करती है, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट हो चाहे वो हिप रिप्लेसमेंट हो, और आप नेक्स्ट डे से आप खड़े होकर चल सकते हैं. हालांकि यस, इट इज ऑन एंड ऑफ पेनफुल इन द इनिशियल स्टेजेस, बट हॉस्पिटल सेटिंग में आपको पेन मैनेज करके कंफर्टेबल करा जाता है. बट जब आप घर चले जाते हैं 4-5 दिन बाद, तो उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 2 या 3 वीक्स तक पेन किलर्स पे रखा जाता है. बट ऐसा नहीं होता कि आप बेड रिडन होते हैं. आप नेक्स्ट डे से चल फिर सकते हैं, नेक्स्ट डे से अपनी एक्सरसाइज, अपना वॉशरूम खुद जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं थोड़ी बहुत, और कोई भी बेड रिडन का अब कॉन्सेप्ट नहीं है. इट इज टोटली दैट यू स्टार्ट मोबिलाइजिंग द नेक्स्ट डे. एंड ऑलमोस्ट 3 हफ्ते, 2 या 3 हफ्ते तक आपको फिजियोथेरेपी करनी होती है. उसके बाद आपके घुटने अच्छे से चलने लग जाते हैं और मूवमेंट आ जाती है, और हिप में भी मूवमेंट आ जाती है, एंड देन हम आपको वॉकर से स्टिक पे शिफ्ट कर देते हैं. ऑलमोस्ट 4 वीक्स to 6 वीक्स के बीच में आप वॉकर और स्टिक छोड़ के आप इंडिपेंडेंटली चलने लग जाते हैं. सो ऐसा नहीं है कि आप बेड रिडन होते हैं आफ्टर रिप्लेसमेंट. So yeah, I think it is helpful for everyone. So big clap for Dr. Goel to giving the impact.
Someone asked you, does stress or anxiety affect arthritis? ऐसा कुछ relation? स्ट्रेस और एंजाइटी आर्थराइटिस पर से नहीं करते, बट अगर ऑलरेडी किसी को आर्थराइटिस है तो उसका पेन परसेप्शन बढ़ जाता है। तो इफ समवन इज स्ट्रेस्ड, इफ समवन इज हैविंग एंजाइटी, तो उनका परसेप्शन ऑफ पेन बढ़ जाएगा। यानी कि अगर किसी किसी एक आदमी को वो पेन एक लेवल 4 फील हो रहा है, तो अगर किसी को एंजाइटी है या किसी को स्ट्रेस है तो वो पेन लेवल उसको 7 का फील होगा। सो यस, क्रॉनिक पेन में हम स्ट्रेस और एंजाइटी भी मैनेज करने को बोलते हैं। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक सा क्वेश्चन है, मैं लेना चाहता हूँ आपके इधर कि व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर मतलब हम लोग को दिखाना चाहिए फॉर आर्थराइटिस, कि कौन सा डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है फॉर ट्रीटिंग आर्थराइटिस? So orthopedic surgeons are the first point of contact, should be the first point of contact for your arthritis related problem. चाहे वो degenerative यानी कि घुटना घिसने की वजह से हो, autoimmune यानी कि rheumatoid arthritis की वजह से हो, तो I think orthopedic surgeon को सबसे पहले दिखाना चाहिए। Perfect. And sir, anything you want to say, some any conclusion remarks? Thanks for take home message. We already shared, but Yeah, so my take home message is that please focus on exercise as well as building up your muscles around the knee if you want कि आपके घुटने में आर्थराइटिस ना हो। दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना है, सर्जरी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें चाहिए कि हम आर्थराइटिस को डेवलप ही ना होने दें। तो अपने घुटने के अराउंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखें। अपने आर्थराइटिस अगर थोड़ा भी पेन हो रहा है तो जल्दी डॉक्टर को दिखाएं, एंड obviously focus on weight and try to reduce your weight with diet and exercise as early as possible. okay. So you are the one doctor that highlighted exercise in your, I think, last 20-25 minutes topic. You have highlighted exercise, I think, n numbers of times. So um, uh, everyone listening over here, exercise is the main thing. The doctor also highlighting. So I think we are, as we were at the end of the session on arthritis, I want to thank Doctor for his time. Because in 20-25 minutes times for this awareness perspective for the society, it is absolutely incredible, incredible. So I want to thank and obviously for everyone for their participation and engagement. And remember, arthritis is preventable and manageable with the right knowledge and proactive measures. We encourage you to continue spreading awareness and supporting those at risk. I'd like to take doctor, if possible, come another 30-40 days back in different topic. Osteoarthritis is a big topic. So you can highlight on some part of exercise in your video module, something like that. That will be very helpful. And obviously together we can make a significant impact on bone health and quality of life. So till then, stay informed, stay healthy, and thank you being part of this important conversation. Thank you, Doc. And Thank, thank you all. thank you, thank you.